Jerry, good morning. हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, टाइम तो करीब करीब हो गया है वैसे, जी है ना। जी। स्टार्ट कर देते हैं, वरुण आके ज्वाइन कर लेंगे, है ना। जी। हम्म, 1.7.12। हाँ, एक मिनट जरा सा श्रीमद् भागवतम की स्तुति कर लें। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अच्छा, अभी क्या नाम है, तुम बोल रही हो कि एक मिनट, हम्म। कौन सा टेक्स्ट है। 1.7.12। हाँ, चलो पढ़ो। जी। परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्रा पुत्राणां वक्षये कृष्ण कथोदयम्। Translation. Sutta Goswami thus addressed the rishis headed by Sonaka. Now I shall begin the transcendental narration of the Lord Sri Krishna and topics of the birth, activities, and deliverance of King Parikshit, the sage amongst kings, as well as topic of the renunciation of the worldly order by the sons of Pandu. Purport. Lord Krishna is so kind to the fallen souls that he personally incarnates himself amongst the different kinds of living entities and takes part with them in daily activities. Any historical fact, old or new, which has a connection with the activities of the Lord is to be understood as a transcendental narration of the Lord. Without Krishna, all the supplementary literature like the Puranas and Mahabharata are simply stories or historical facts. But with Krishna, they become transcendental. And when we hear of them, we at once become transcendently related with the Lord. Srimad Bhagavatam is also a Puran, but the special significance of the Puran is that the activities of the Lord are central and not just supplementary historical facts. Srimad Bhagavatam is thus recommended by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as the spotless Puran. There is a class of less intelligent devotees of Bhagavad Puran who desires to relish at once the activities of the Lord narrated in the 10th canto without first understanding the primary cantos. They are under the false impression that the other cantos are not concerned with Krishna, and thus more foolishly than intelligently they take to the reading of the 10th canto. These readers are specifically told herein that the other cantos of Bhagavatam are as important as the 10th canto. No one should try to go into the matter of the 10th canto without having thoroughly understood the purport of other 9 cantos. Krishna and his pure devotees, like the Pandavas, are on the same plane. Krishna is not without his devotee of all rasas, and the pure devotees, like the Pandavas, are not without Krishna. The devotees and the Lord are interlinked and they cannot be separated. Therefore, talks about them are all Krishna Katha or the topics of the Lord. प्रभुपाद जी ना यहाँ पर परपोर्ट में ये बता रहे हैं बेसिकली कि लॉर्ड श्री कृष्णा एज वेल एज हिज डिवोटीज की जो इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं। और लॉर्ड कृष्ण मतलब ये उनके जो डिवोटीज हैं उनकी भी एक्टिविटीज
उतनी ही प्यूरिफाइंग है, उतनी ही ट्रांसेंडेंटल है जितनी लॉर्ड श्री कृष्णा की डायरेक्ट एक्टिविटीज हैं। हाँ और एक चीज और उन्होंने बड़ा ट्रैश की है, काफी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो 10th कैंटो में सीधे चले जाते हैं, यहाँ पर कि रासलीला का, भगवान के रासलीला का, जो कि सबसे ज्यादा मतलब वो बल्कि वो रिकमेंडेड भी नहीं है कि हर एक के समझ में आने वाली वो चीज नहीं है उस तरह की चीज। तो इसलिए कदम है क्या है कि जब तक आप पूरा भागवतम में शुरू से लेकर के अंत तक इन्हें इन्हें सीक्वेंस नहीं पढ़ेंगे तो आप उसका मतलब पूरा आपको ट्रांसेंडेंटल वो नहीं मिलेगा जी लाभ। जी। क्या नाम है, ये यहाँ पर क्या नाम है, उन्होंने कहा है कि भाई जो उनकी ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी ना लॉर्ड की, और उनके उनके जो जो डिवोटीज है जैसे सन्स ऑफ पांडु हैं या परीक्षित है, उनकी भी जो मतलब जो जो उनकी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे पुराण है बहुत सारे, लेकिन इसीलिए इसको महापुराण कहा गया है। हम्म। भागवतम को महापुराण कहा गया क्योंकि इसके अंदर में सेंट्रल थीम जो है लॉर्ड श्री कृष्णा है। जी। महाभारत भी जो है ना उसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो लॉर्ड श्री कृष्णा नहीं है, हाँ मतलब हाँ इट इज बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब हाँ हो रही हैं उसमें। हाँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों जी को ये बताया है उन्होंने कि जी ये जो है ना, जी। ऑल्दो आपको वैसे पढ़ने से लगेगा कि जैसे ये कोई मतलब परपोर्ट जो है वो थोड़ा सा अनरिलेटेड है वर्ष नहीं, से। आई कुड गेट 2 पॉइंट्स। पहली चीज तो ये इसमें मुझे ये मिली कि इन्होंने जो ये कहा है कि लॉर्ड कृष्णा इज सो काइंड टू द फॉलन सोल्स दैट ही पर्सनली इनकारनेट्स हिमसेल्फ अमंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज एंड टेक पार्ट विद देम इन डेली एक्टिविटीज। ये जी पहली बात ये मिली कि लॉर्ड कृष्णा के कांटेक्ट में, जब हम लॉर्ड कृष्णा के कांटेक्ट में आते हैं और जो कुछ भी करते हैं ये लॉर्ड कृष्णा की वजह से वो सारी चीजें ट्रांसेंडेंटल हो जाती हैं। और यही दूसरी बात मुझे ये समझ में आई जो इन्होंने ये कहा कि आप कैंटो 10th में अगर डायरेक्ट आते हैं तो यही पहली बात ये है कि पहले और चीजों को पढ़ के हम उस लेवल की अपनी समझ तो कर लें, तभी तो हम उनकी रासलीला का जो एक्चुअल में मतलब है वो समझ पाएंगे, नहीं तो फिर हम उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। है ना जी? एक चीज तुम्हारा तुम्हारा ये दूसरा वाला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। पहले जी वाले पॉइंट में एक जरा आगे पढ़ेंगे ना हम, जी। तो हमें ये पता चलेगा कि हम्म, लॉर्ड श्री कृष्णा जब यहाँ पर खुद अवतार लेते हैं, मतलब खुद आते जी हैं, तो जी। अकेले नहीं आते हैं। हाँ वो अपने अपने डिवोटीज और उनके साथ में आते हैं। तो वो जितने भी लोग हैं, चाहे पांडु हो, चाहे गोपियां हो, चाहे वो सब भी उनके साथ उनके पहले आते हैं ओके। और वो उन्हीं के साथ में लीला करते हैं। तो अच्छा। वो जो जो मटेरियल वर्ल्ड में वो केवल आते हैं अपने साथियों के साथ में, हमारे जैसे फॉलन सोल्स को अपनी लीला दिखा करके जी। उनको डिलीवर करने के लिए। अच्छा। तो इसीलिए देखिए जो ये अर्जुन वगैरह जो है ये मंडेन लोग नहीं है। हाँ ये हाँ आप आगे चल के देखेंगे, ये हाँ। या गोपियां जो है मंडेन नहीं है, दे आर हिज एटर्नल क्या नाम है, मतलब उनके साथ में ये करते ये ही वाला रहते जो हैं। ओके। ये मुझे मौसी का भी ये वाला जो पॉइंट था, मेरे को मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मतलब कि वो तो जो लॉर्ड कृष्णा के एसोसिएट्स हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं और वो बिल्कुल अलग हैं, एंड ऑफ कोर्स विद लॉर्ड कृष्णा के साथ आते हैं। ये वाला जो मुझे ये मेरे को इस तरह से भी देखने में मदद हुई जो मौसी कह रही थी कि भाई जैसे कि प्योर डिवोटीज हैं, प्योर डिवोटीज के बारे में पता है कि लॉर्ड कृष्णा उनके सेंसेस और उनको टेक ओवर कर लेते हैं। तो हाँ एक्चुअली वो लॉर्ड कृष्णा के इतने कांटेक्ट में आ चुके होते हैं कि उनकी एक्टिविटीज भी ट्रांसेंडेंटल बन जाती हैं। तो जैसे कि ना मतलब जैसे जो मौसी जिस तरह कह रही थी कि भाई अगर आप लॉर्ड कृष्णा के कांटेक्ट में आना स्टार्ट कर दें, हाँ हाँ जैसे कि थ्रू चैंटिंग, थ्रू हाँ। रीडिंग दीज टेक्स्ट, उनके बारे में पढ़ के, तो धीरे धीरे आपकी ये एक्टिविटी, जैसे हमारी ये वाली एक्टिविटी अभी जो हम जी पढ़ रहे हैं, दिस इज जी ट्रांसेंडेंटल नाउ।
जी। ये तो इस तरह से आई थिंक मौसी कह रही थी, तो हाँ, जो ये और वरुण हाँ मेन चीज बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बस यही मेन चीज ये है कि जो हम उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं इस वजह से। हम्म, ये तुम दोनों जने की बात ठीक है जी कि आप कर्म है जी हम लोग जो हैं जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं जी तैसे तैसे हम लोग भी ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड में मटेरियल बॉडी में रहते हुए ही मतलब जी जो लोग प्योरेस्ट डिवोटीज है ना जी। दे स्टार्ट बिकमिंग एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा। ये हम्म ये फैक्ट है कि ना ये भी मतलब आई डोंट नो मतलब ये जो तुम लोग का जो थिंकिंग है ना वो वही एक चीज वो क्लैरिफाई भी होती है हम्म कि जो पांचों रस है ना जो भगवान के साथ में जो पर्सनलाइज रिलेशनशिप जब डिवोटी की बनने लग जाती है ना हम्म। तब फिर वो क्या नाम है मतलब वो एक डिफरेंट प्लेन पे पहुंच जाता है। यू आर वेरी राइट बोथ ऑफ जी 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 तो मुझे तो ये बड़ा एनकरेजिंग लगा जो ये सेंटेंस, जी। द डिवोटीज एंड द लॉर्ड आर इंटरलिंक्ड एंड दे कैन यस। नॉट बी सेपरेटेड। मतलब हाँ इसमें ये नहीं है ऐसा उन्होंने प्योर डिवोटीज, मतलब प्योर डिवोटी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वहां तक हाँ आप यस। पहुंचोगे। बट उन्होंने तो ये कहा, और जो शिला प्रभुपाद खुद समझ रहे हैं, उनको पता है प्योर डिवोटी ग्रेजुअल प्रोसेस, येट ही हैज सेड द हाँ डिवोटीज एंड द लॉर्ड आर इंटरलिंक्ड एंड दे हाँ कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो हाँ मतलब आपने एक बार प्रोसेस स्टार्ट कर दी तो आपकी इंटरलिंकिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे ये जी बड़ा, जबकि लॉर्ड कृष्णा के बारे में जबकि सबको पता है, वो उनको कौन पकड़ सकता है, वो हाँ मतलब किसी के भी। बट दिस इज सच ए नाइस थिंग कि ए, मतलब यू ए, जी कैन ए, इंटरलिंक योरसेल्फ। ए, उसको एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस प्रभुपाद ने यूज किया ना कि डिवोटीज एंड लॉर्ड श्री कृष्णा कैन नॉट बी सेपरेटेड हाँ हाँ वो है क्या नाम है मतलब जैसे कुंती माता हैं देवकी हैं यशोदा जी हैं ये अर्जुन और ये सारे लोग जो है ना ये क्या नाम है दे कैन नॉट उनकी भी नरेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। हाँ, मतलब यहाँ पर ये मतलब है जी टू दैट एक्सटेंट मेरे को हाँ ऐसा ही क्रम में मुझे पढ़ने एक्चुअली थोड़ा उसको एक्सटेंड करना मेरे को ज्यादा ठीक, जैसे कि अब शीला प्रभुपाद की लीलामृता है, यू कांट सेपरेट दैट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, मतलब कि भाई हाँ उन्होंने सारी वो चीजें दैट लॉर्ड इज कृष्णा वेरी की। ट्रू जब आप मतलब प्रभुपाद जैसे लोग और आप भी उस लेवल पे पहुंचने की स्टार्ट कर चुके हैं हाँ मतलब Right. ये दैट मुझे पार्ट इज उसी प्रभुपाद कलम है मतलब वो भी उस जगह पे पहुंचे हैं आफ्टर कलम है मतलब रियली कलम में बिकमिंग ए डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड सतस्वरूपा हाँ महाराज हैज अटेन्ड दैट पोजीशन बाय कलम है बीइंग टोटल डिवोटी मतलब हम लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस जी जी या यस 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 नेक्स्ट चलो वरुण तो पढ़ लो हाँ। ठीक 13 to 14, टेक्स्ट 13-14। यदा मृद्धे कौरवा सृञ्जयानं वीरेष्व अथो वीरा गतिं गतेषु वृकोदरा विद्धा गडा भीष्मर्ष भाग्नोरुदण्डे धृता राष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणिर् इति समापाश्यान् कृष्णसुतानां स्वपातं शिरांसि उपाहरद् विप्रियम् एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगार्हयन्ति। When the when the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and the Pandavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, and the dead warriors obtained their deserved destinations, and when the son of Dhritarashtra fell down lamenting, his spine broken, being beaten by the club of Bhimsen, the son of Dronacharya, Ashwathama beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi and delivered them as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhan, however, disapproved of the heinous act, and he was not pleased in the least. Purport. Transcendental topics of the activities of Lord Sri Krishna in the Srimad Bhagavatam begin from the end of the battle at Kurukshetra, where the Lord himself spoke about himself in the Bhagavad Gita. Therefore, both the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are transcendental topics of Lord Krishna. The Gita is Krishna Katha or topics of Krishna because it is spoken by the Lord,
and Bhagavatam is also Krishna Katha because it is spoken about the Lord. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted everyone to be informed of both Krishna Kathas by his order. Lord Krishna Chaitanya is Krishna himself in the garb of a devotee of Krishna, and therefore the versions of both Lord Krishna and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are identical. Lord Chaitanya desired that all who are born in India seriously understand such Krishna Kathas, and then after full realization, preach the transcendental message to everyone in all parts of the world. That will bring about the desired peace and prosperity of the stricken world. बड़ा क्लियर परपोर्ट है, इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है. एब्सोल्युटली उन्होंने गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों के बारे में बता दिया है. चैतन्य महाप्रभु ने क्या ऑर्डर किया है भगवान के इसमें. तो आई थिंक व्हाट वी आर, मतलब हम लोग जो हैं, जो ये कर रहे हैं, ये रियली कर्म है. मतलब वी आर फॉलोइंग लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's ऑर्डर्स एज वेल एज भगवान की कथा कर रहे हैं भाई. या नेक्स्ट जी. नहीं कुछ और कहना तो बताओ. नहीं इसमें तो वेरी वेरी क्लियरली इट इज देयर. Canto 1 chapter 7 verse 15. माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुद्ध कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली. Translation. Draupadi, the mother of the 5 children of Pandavas, after hearing of the massacre of her sons, began to cry in distress with eyes full of tears. Trying to pacify her in great loss, Arjun spoke to her thus. तो बिल्कुल क्लियर है भाई, उसके सारे बच्चे मार दिए गए क्रम में. तो शी वॉज क्राइंग विच इज वेरी वेरी नेचुरल. तो उसके हस्बैंड ने उसको स्पेसिफाई आगे. अच्छा चलो तुम पढ़ लो. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर क्रम में व्हाट वाज हैपनिंग. इट इज हिस्टोरिकल फैक्ट. ओके जी. हाँ अब तुम पढ़ो. तदा सुचस्ते प्रमजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आताइना गांडीव मुक्ते विर्ष शिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्यस्यानिस दग्ध उद्रा. Translation. O gentle lady, when I present you with the head of the Brahmana, after beheading him with arrows from my Gandiv bow, I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Then after burning your sons' bodies, you can take your bath standing on his head. Purport. An enemy who sets fire to the house, administers poison, attacks all of a sudden with deadly weapons, plunders wealth or usurps agricultural field, or enemies one's wife is called an aggressor. Such an aggressor, though he is a Brahmana or so-called son of a Brahmana, has to be punished in all circumstances. When Arjuna promised to behead the aggressor named Aswasthama, he knew well that Aswasthama was son of Brahmana. But because the so-called Brahmanas acted like a butcher, he was taken as such, and there was no question of sin in killing such a Brahmana's son who proved to be a villain. यहाँ पे उपाध्याय जी ना थोड़ा सा ब्राह्मणों के बारे में बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म तो है क्रम है, मतलब ही इज टू फाइट, बट एक और इंजंक्शन है कि दे आर नॉट सपोज टू किल ब्राह्मण्स. बट उसके ऊपर एक कैविएट है कि ये 5 चीजें जो है, ये मेरे ख्याल भगवत गीता में भी हम लोग देख चुके हैं. 5 चीजें हैं. एनीवन हु सेट्स फायर टू द हाउस, administers poison, attack of a sudden with deadly weapon, plunders wealth or usurps agriculture fields,
और एंटीसेस वन वाइफ इज कॉल्ड एग्रेसर। पांडवों के साथ में कई सारी चीजें इन कौरवों ने करी थी। तो यहाँ पर अश्वत्थामा के भी केस में ये वाला एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि भाई इसको ब्राह्मण को इसका बिहेड कर सकते हो तुम, लाइक दैट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस वर्स कि भाई ऐसा क्यों किया। क्योंकि कोई बहुत सारे लोग जो होंगे नॉलेज में होंगे तो वो सोचेंगे कि भाई ब्राह्मण को मारने के लिए you are when you are not you cannot kill a Brahman, then how did you think of such a thing? On a very side note, but you see how कितनी हम लोग की इंडियन अमेरिकन यूरोपियन सोसाइटी कितना डिजेनरेट हो चुकी है कि पहले और ये सिर्फ वैदिक शास्त्रों में नहीं है, बाय द वे, ये मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। Anyone who entices one's wife is called an aggressor and should be put to death immediately. ठीक है, मतलब ये वैदिक इंजंक्शन में, जबकि वैदिक इंजंक्शन में ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू भी बताई गई है, बट येट इस तरह के पर्सन को, रावण को मारा ही लॉर्ड राम ने इसी के अंडर, यही बताते भी हैं, भगवत गीता में भी उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया है। Whereas you see in सारी सोसाइटीज में not only has adultery become मतलब accepted by legal means, it has become accepted. कितना degeneration आ चुका है हम लोगों की सोसाइटी में is all I'm just pointing out. It is really correct, very sad. yes, it's a very sad state of affair. And when the topmost judges of these country, which are supposedly supposed to be the Brahman class, they are the ones who are facilitating it. मतलब इट इज रियली सोसाइटी का होना ही चाहिए, मतलब इट शुड, मतलब और क्या कह सकते हैं भाई। ये बिल्कुल तुमने ये बहुत करेक्ट बात पकड़ ली है कि देख लो यार क्या नाम है, कितना नीचे आ चुके हैं लोग कि अब बाय लॉ इन्होंने क्या नाम है ये चीज सब लीगलाइज कर दी है, दैट एडल्टरी हैज बीन लीगलाइज्ड। यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, इंडिया में भाई, यूरोप अमेरिका तो इतने वो नहीं थे, लेकिन ये तो earlier a person would be put to death for enticing a one's wife. He would be put to death by Vedic culture. जिसमें कि रावण ने किया, he was put to death. Very sad state of affairs. But चलो तुम पढ़ो 17. इति प्रियाम वाल्गु विचित्र जलपाए सा संतवायित्वाच्युता मिस्त्र सुतः अन्वाद्रवद दंशिता उग्र धान्वा कपि ध्वजो गुरुपुत्रम रथेना। Arjun, who is guided by the infallible Lord as friend and driver, thus satisfied the dear lady by such statements. Then he dressed in armor and armed himself with furious weapons, and getting into his chariot, he set out to follow Ashwatthama, the son of his martial teacher, Dronacharya. तो निकल पड़े वो अर्जुन। अश्वत्थामा के पीछे वो क्रम है, उन्होंने अपना चैरियट दौड़ा दिया। एंड बाय द वे, मतलब कि इसमें ये भी है, अगेन आई वुड डिसाइड टू से he is guided by the infallible Lord, friend and driver, Lord Krishna. So Lord Krishna approved of this thing कि भाई अश्वत्थामा को जाके मारो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे आएगा शायद, यस बिल्कुल आएगा जी। 1.7.18 तमा पतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विग्न मना रथेन पराद्रव प्राण परिपुसुव्रयाम यावदग्नम रुद्र भयाद्ध कथा कह। Ashwatthama, the murderer of the princess, seeing from a great distance Arjun coming at him with great speed, fled in his chariot, panic-stricken, just to save his life, as Brahma fled in fear of Shiva. Purport. According to the reading matter, either Kah or Arkah, there are two references in the Purans. Kah means Brahma, who once became allured by his daughter and began to follow her, which infuriated Shiva, who attacked Brahma with his trident. Brahma ji fled in fear of his life,
As far as Arkah is concerned, there is a reference in Vaman Puran. There was a demon by the name of Vidyul Mali who was gifted with glowing golden airplane, which traveled to the back of the sun and night disappeared because of glowing effulgence of the plane. Thus the sun god became angry, and with his virulent rays he melted the plane. This enraged Lord Shiva. Lord Shiva then attacked the sun god, who fled away at last, fell down at Kashi, Varanasi, and the place became famous as Lolarka. एक तो इसमें एक कथा बताई है कि भाई लॉर्ड शिवा भी मतलब लॉर्ड ब्रह्मा जो कि इतने एग्जॉल्टेड हैं, इतने बड़े एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं, but he also fell to his senses. He was also allured by his senses, क्या नाम है, so much so that he became attracted to his own daughter and he ran after her. और उसको देख करके लॉर्ड शिवा जो है वो उन्होंने अपना त्रिशूल लेकर के उनको गए वो रोकने के लिए और उनको ऊपर अटैक किया. तो ये जो है ये जो चीज है कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल करेक्ट है अगर ये काम करना है ना, जो अर्जुन गए हैं उनके पीछे पीछे मारने के लिए. और दूसरा ये भी बताया क्या नाम है कि इस तरह के काम एक दूसरा राक्षस जिसने कि उसके बाद प्लेन था वो उसने रात को ही खत्म कर दिया, रात में वो उसके सन के पीछे चला गया. दैट ऑल्सो क्या नाम है इन्फ्यूरिएटेड लॉर्ड शिवा, मतलब सन गॉड ने उनको जला दिया, खत्म कर दिया. और लॉर्ड शिवा ने क्या नाम है उसको सन गॉड को अटैक करके वो. लेकिन मेरे को एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि व्हाई डिड लॉर्ड शिवा बिकेम इन्फ्यूरिएटेड विद सन गॉड? Did sun god not do the correct thing? पता नहीं इसमें पूरी स्टोरी. हाँ ये पूरी स्टोरी का पता नहीं है, इसलिए we leave it at that, है ना. Let us not question the purport, है ना. आगे तुम पढ़ो, नहीं तुम पढ़ो, क्या नाम है, या राधा तुम पढ़ो. जी. यदा शरणम आत्मान मैच्छत शांत वाजनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्म त्राणम द्विजात्मजा. जी. Translation. When the son of the Brahmana saw that his horse were tired, he considered that there was no alternative for protection outside of his using the ultimate weapon, the Brahmastra, nuclear weapon. In the ultimate issue only, when there is no alternative, the nuclear weapon called the Brahmastra is applied. The word Divjat Majah is significant here because Aswasthama, although son of Dronacharya, was not exactly a qualified Brahmana. The most intelligent man is called Brahmana, and it is not a hereditary title. Aswasthama was also formerly called the Brahma Bandhu or the friend of the Brahmana. Being a friend of Brahmana does not mean that that one is a Brahmana by qualification. A friend or a son of Brahmana, when fully qualified, can be called a Brahman and not otherwise. Since Aswasthama's decision is immature, he is purposely called here in the son of Brahmana. यहाँ पर बड़ा मतलब उन्होंने काफी चीजें बताई हैं कि भाई जब वो उसके पीछे आ रहे थे तो देयर वाज समथिंग लाइक ही कुड इन्वोक a nuclear weapon, Ashwatthama, but at the same time he was a Dvij Atmaja, मतलब he was not a qualified Brahmin, मतलब just because of being son of Dronacharya, who was a Brahman, who was always, but he was called son of a Brahman.
That is why Dvij Atmaja, he was not pure, मतलब he was not Brahmin, so nobody could become Brahmin by birth, जो कि अब आजकल चल गया है. Because आज की डेट में जितने भी ये Brahmins है ना, they are no more Brahmins actually. Frankly, none of them are Brahmins. None of them are Brahmins. They are all Asuras actually. Yes. हाँ, पढ़ो तुम. Next. 20. अथोपास्पृश्य सलिलम संदाधे तत् समाहिता अजानन अपि संहारम प्राणकृच्छ्र upasthite. Since his life was in danger, he touched water in sanctity and concentrated upon the chanting of the hymn for throwing nuclear weapons, although he did not know how to withdraw such weapons. Purport. The subtle forms of material activities are finer than grosser methods of material manipulation. Such subtle forms of material activities are effected through purification of sound. The same method is adopted here by chanting hymns to act as nuclear weapons. यहाँ पर अगेन प्रभुपाद जी ने मतलब साउंड वाइब्रेशंस का कितनी इंपॉर्टेंस ये बताने की कोशिश बताया है इन ए वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट. और दूसरा एक और भी चीज है कि द पावर ऑफ चैंटिंग मंत्रास भी इसमें बता रहे हैं. ये दो चीजें वो बता रहे हैं कि अश्वत्थामा just by taking water in his hand, because he was, although Dvij, लेकिन he was son of मतलब एक pure Brahmin, और उस पुराने जमाने में तो he could invoke nuclear weapon. That knowledge he had. मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट. तथा प्रादुष्कृतम तेजः प्रचंडम सर्वदिशतम प्राणापदम विप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णुरुवाच. Thereupon a glaring light spread in all directions. It was so fierce that Arjun thought his own life in danger, and so he began to address Lord Krishna. मतलब वो न्यूक्लियर वेपन उसने इन्वोक कर दिया. अब वो उसका वो तो मतलब that fireball started coming towards him, which is with his effulgent glow. तो वो अर्जुन को भी डर लगा. देखो यहाँ पर भी देखो ना, उसने तुरंत भगवान की तरफ देखा. जैसे ही उसने डेंजर देखा तो उसने मतलब ही डिड नॉट थिंक ऑफ, उसने अपने गुरु को और भगवान को अप्रोच किया. जी. भगवान जो उसके गुरु बन चुके थे उनको अप्रोच किया. यही हम लोगों को भी मतलब एक चीज कंप्लीट कर लो आप. नहीं मतलब वही हम लोग के लिए भी सीख है भाई कि भगवान की तरफ हम जब भी मुसीबत में पड़े तो डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम मटेरियली. भगवान की तरफ स्टार्ट प्रेइंग टू हिम, दैट भगवान आपको बताएंगे, आपको बुद्धि देंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए. और जब आपका एक प्यूरिफाइड गुरु आपको मिल जाए तो फिर वो आपको गाइड करेंगे. अपने मटेरियल कष्ट के लिए उनके पास जा करके उनको अप्रोच करने में कोई वो नहीं है. जैसे आप लोग हम लोग सब लोग संकोच करते हैं ना अपनी प्रॉब्लम को इधर उधर लोगों को बताने में, जो कि राइट भी है. बट यू मस्ट अप्रोच लॉर्ड श्री कृष्णा और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, द फॉर्म ऑफ ए गुरु, बिकॉज गुरु और लॉर्ड श्री कृष्णा में कोई फर्क नहीं है. जी. तो ये इसके बाद तुम पढ़ो मेरे ख्याल में. जी. अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दया माना नाम पवर्गो असि संस्कृते. Translation. Arjun said, "O my Lord Shri Krishna, you are the almighty personality of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. Everyone in the flame of material miseries can find the path of liberation in you only." Purport. Arjuna was aware of the transcendental qualities of
Lord Shri Krishna, as he had already experienced them during Kurukshetra war, in which both of them were present. Therefore, Arjuna's version of Lord Krishna is authoritative. Krishna is almighty and especially the cause of fearlessness for the devotees. A devotee of the Lord is always fearless because of the protection given by the Lord. Material existence is something like a blazing fire in the forest, which can be extinguished by the mercy of Lord Shri Krishna. The spiritual master is the mercy representative of the Lord. Therefore, a person burning in the flame of material existence may receive the rains of mercy of Lord through the transparent medium of self-realized spiritual masters. The spiritual master, by his words, can penetrate into the heart of the suffering person and inject knowledge transcendental, which alone can extinguish the fire of material existence. बिल्कुल, मतलब उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया भाई। जी। मटेरियल मिजरी का और कोई तरीका नहीं है जी। एक्सेप्ट अप्रोचिंग द सुप्रीम लॉर्ड। और ये सेंटेंस कितना पावरफुल है, द स्पिरिचुअल मास्टर बाय हिज वर्ड्स कैन पेनिट्रेट into the heart of the suffering person and inject knowledge transcendental, which alone can extinguish the fire of material existence. देखो ना, तुमने पकड़ लिया। देखो ना, जी। यहाँ पर इसीलिए क्योंकि वो तो भगवान का रिप्रेजेंट, भगवान ही हो गए वो स्पिरिचुअल मास्टर। ओनली ही हैज द एबिलिटी टू पेनिट्रेट द हार्ट ऑफ द हिज डिसाइपल। मतलब वो, इसीलिए उनको अप्रोच करना चाहिए, और उनकी एब्सेंस में हमें भगवान लॉर्ड कृष्णा को अप्रोच करना चाहिए, उनको प्रे करना चाहिए। एंड लॉर्ड कृष्णा तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, तो वो गाइड करेंगे। वो भगवत गीता में आएगा, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। वो ये चारों चीजें देते हैं। क्या नाम है, मत्ता मतलब वो जो है द नॉलेज, द मेमोरी, क्या नाम है, सब कुछ देते हैं भगवान। तो आपको राइट पाथ पे लेके चले जाएंगे। और आप जब अगर क्या नाम है, मतलब आपको गुरु से दीक्षा मिल जाए तो फिर नथिंग लाइक इट। तो भाई लेकिन इसमें जो इसमें ये वाला पार्ट बहुत, जो आपने भी कहा ना स्पिरिचुअल मास्टर का, कि जो आपने सेंटेंस पढ़ा, द स्पिरिचुअल मास्टर बाय हिज वर्ड्स कैन पेनिट्रेट इनटू द हार्ट ऑफ द सफरिंग पर्सन। तो मेरे को ये लगा कि भाई ये, क्योंकि हम शीला प्रभुपाद के ये परपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं के वर्ड्स हैं, इसीलिए ये हम पे इतने जबरदस्त तरह से एक्ट करते हैं। दे पेनिट्रेट इनटू आवर हार्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो सफरिंग, एंड दे इंजेक्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, and that starts actually at least extinguishing the fire of material existence, right? At least काफी उसका असर कम होना स्टार्ट होता है। मैं एक्चुअली ऐसा फील करता हूँ। इसीलिए हम लोगों के लिए, मुझे इसीलिए ये किताबों में ये शीला प्रभुपाद की किताबें वेरी वेरी डियर। 23। हाँ तुम्हारे, हाँ। त्वम् आद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायं वियुदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थिता आत्मनि। You are the original personality of Godhead who expands himself all over the creations and is transcendental to material energy. You have cast away the effects of the material energy by dint of your spiritual potency. You are always situated in eternal bliss and transcendental knowledge. Purport. The Lord states in the Bhagavad Gita that one who surrenders unto the lotus feet of the Lord can get release from the clutches of nations. Krishna is just like the sun, and Maya or material existence is just like darkness. Wherever there is the light of the sun, darkness or ignorance at once vanishes. The best means to get out of the world of ignorance is suggested here. The Lord is addressed herein as the original personality of Godhead. From him, all other personalities of Godhead expand. The all pervasive Lord Vishnu is Lord Krishna's plenary portion or expansion. The Lord expands himself in innumerable forms of Godhead and living beings along with his different energies. But Sri Krishna is the original primeval Lord from whom everything emanates. The all pervasive feature of the Lord experienced within the manifested world is also a partial representation of the Lord.
Paramatma, therefore, is included within him. He is the absolute personality of Godhead. He has nothing to do with the actions and reactions of the material manifestations because he is far above the material creation. Darkness is a perverse representation of the sun, and therefore the existence of darkness depends on the existence of the sun. But in the sun proper, there is no trace of darkness. As the sun is full of light only, similarly, the absolute personality of Godhead beyond the material existence is full of bliss. He is not only full of bliss, but also full of transcendental variegatedness. Transcendence is not at all static, but full of dynamic variegatedness. He is distinct from the material nature, which is complicated by the three modes of material nature. He is Param or the chief, therefore he is absolute. He has manifold energies, and through his diverse energies, he creates, manifests, maintains, and destroys the material world. In his own abode, however, everything is eternal and absolute. The world is not conducted by the energies or powerful agents by themselves, but by the potent, all powerful with all energies. Hmm. प्रभुपाद जी ने कई चीजें क्लैरिफाई की हैं। एक तो मतलब लॉर्ड श्री कृष्णा इज द प्रीमियल लॉर्ड, उसके मतलब बाकी जो सारे लोग हैं ना, कि कई लोग जो मिसकंसेप्शन है उसको उन्होंने किया है, इंक्लूडिंग महाविष्णु वगैरह, ये सब उनके अंश अवतार हैं, मतलब वो उन्होंने अपनी से किया। दूसरा उन्होंने ये बताया है मेरे ख्याल में कि भाई ये जो ही इज नॉट टच्ड बाय माया, ही हैज कंट्रोल्ड माया थ्रू हिज इंटरनल पोटेंसी। दूसरी चीज ये बताई है। और भी क्या नाम है, डार्कनेस, और वो बड़ा पावरफुल क्या नाम है, वो पहले भी आ चुका है कि वेर एवर देर इज कृष्णा देर इज लाइट, एंड वेर एवर देर इज माया देर इज डार्कनेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को हमेशा रिमेम्बर रखना चाहिए कि जैसे ही आप माया की तरफ झुकेंगे, आप अंधकार में चले जाएंगे। और उसको डिस्पेल करने के लिए तुरंत भगवान को याद करो, जप करना शुरू कर दो। जब भी आपको लिमिटेशन या कुछ इस तरह का मेंटल प्रॉब्लम हो, तो तुरंत समझ लो कि दैट यू हैव बीन कैप्चर्ड बाय माया, एंड यू मस्ट स्टार्ट चैंटिंग भगवान को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी कर सकते हैं। और अब तो आप भागवतम के ज्ञान में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये उनकी जो कथाएं हैं वेरियस, उनको क्या नाम है, यू कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन दैट। यही वाली कथा को आप मेडिटेट कर सकते हैं। नारद मुनि की जो जन्म की कथा है वो बड़ी पोटेंट है, मतलब उसको आप मेडिटेट कर सकते हैं कि भाई नारद मुनि ने क्या किया था, नारद मुनि का कैसे वो इतने बड़े वो बन गए कि अब सारे ब्रह्मांड में विचरते रहते हैं। ही ओनली हैज द पावर टू गो इनटू डिफरेंट यूनिवर्सेस एट हिज विल। भगवान के पास में भी जा पाते हैं, मृत्यु लोक में भी आ सकते हैं, पाताल लोक में भी जा सकते हैं, राक्षसों के पास कुछ भी कर सकते हैं वो। तो उनकी कथा भी याद कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है वो तो ये महामंत्र का आप अगर जाप करेंगे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ये तो हम लोग के टेस्टेड चीजें हैं, ये मतलब हम दोनों जने के पर्सनल टेस्ट किया हुआ ये चीज है कि जब बहुत ज्यादा लिमिटेशन, एंगर एट द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल जो होता है ना, जब आप सोचते हो यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया क्या नाम है, और ये मेरे को न्याय नहीं मिला, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर क्या नाम है, मतलब अगर आपने माया के ही चक्कर में रहे तब तो फिर आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जाने का बड़ा डर रहता है। और लेकिन अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप चाहे भगवत गीता के टच में आ जाओ, या श्रीमद् भागवतम के टच में आ जाओ, या चैंटिंग के टच में आ जाओ, जो चीज जैसा पापा ने कहा, हाँ ये तो हम लोगों का टेस्टेड है। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स तो आती हैं कई कई बार, बहुत इनजस्टिस लगता है, बहुत इंटेंस इनजस्टिस लगता है, बट यू फील, क्योंकि अब जैसे अर्जुन वगैरह इन लोगों को भी बड़ा इंटेंस इनजस्टिस लग रहा था कि हम ऐसा होता रहता है, बट कोई भी चीज के टच में आ जाए जो लॉर्ड कृष्णा से ये जो एक तो उनकी कथाएं हैं उनके डिवोटीज की और उनकी खुद की,
दूसरा क्रम है चैंटिंग, और तीसरा क्रम है अगर आप कुछ श्लोकास जो है ना इम्पोर्टेंट उनको याद कर सके ना, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। वो बहुत हेल्प देन करते हैं, यू या दैट इज वेरी ये पावरफुल इफ यू वेरी रिमेम्बर पावरफुल। सर्टेन क्रम है। जैसे एक ही मतलब एक ही की श्लोका है, मतलब बल्कि काफी लोग जो है ना जो पुराने प्रीचर्स हैं दे टेल कि भाई क्रम है, मतलब दे स्टार्ट देयर डे विद रिसाइटिंग जो 8-10 उनको जो की श्लोकास हैं उनको उनको क्रम है याद कर लेते हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोष्ठ कर्मणि। इसको मतलब जस्ट लाइक कर्म ये नहीं, बिल्कुल आपको पूरा एकदम से तुम्हारे मीनिंग को के साथ। समझना चाहिए कि भाई यू आर नॉट द कॉज ऑफ, ये जो सेकंड लाइन है वो बड़ी की है। सेकंड लाइन इज द मोस्ट, मतलब उसको कोई नहीं समझता है, बस को खाली कर्मण्य वादिका रस्तु सोच रहे हैं, बस यार अपने काम में लगे हुए हैं, वही कर्मण्य वादिका रस्तु है। और दूसरा ये बड़ा पावरफुल श्लोक है, क्या नाम है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो नश्यामि मां शुच। मतलब कि तुम सारी ड्यूटीज को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या नाम है, मतलब और कुछ नहीं करने की जरूरत। जब भी मुसीबत आए भगवान की शरण में जाओ, और परमानेंटली जा सकते हो, नथिंग लाइक इट। तो आप अगर परमानेंटली 24/7 उनकी शरण में है ना, मतलब यस आसान भी है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं, ये तो तुमने खुद ही कहा है, आई आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग दैट, है ना। तो जी ये जिया जी, जो पहले वाला श्लोक था एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा कर्मण्यवाद कर, हाँ हाँ, एक बार इसको जरा एक्सप्लेन वरुण कर दीजिए। तुम करो यार एक्सप्लेन, आई थिंक यू कैन डू ए अच्छा, बेटर जॉब। एक्चुअली मौसी उसके ना जैसे कर्मण्य एवाधिकार रस्ते, तो ये पहले वाले का मीनिंग है कि हमारा अधिकार है हमारी ड्यूटीज पे, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पे, वो करने पे हमारा अधिकार है। कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर, ये दो लाइंस का है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना तो हम उसके एंटाइटल्ड हैं, इसका मतलब ये तो सबको पता है कि भाई रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है या लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वी आर नॉट द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑल्सो। जैसे अभी हम लोग की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, मैंने पढ़ाई करी तो मेरे ग्रेड आए, मैंने बहुत अच्छे ग्रेड लाया तो जॉब मिला, जॉब मिले तो पैसे मिले, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, पूरी पूरी हमारी मटेरियल वर्ल्ड इज कॉज एंड इफेक्ट। वेराज इस वाले श्लोक में भगवान ने उसको ब्रेक किया है। कॉज ना ही आपके पास रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, क्योंकि फिर आदमी सोचने लग जाता है कि मैं ही कॉज हूं उसका, जैसे मेरे पास खराब रिजल्ट आए तो मैं ही कॉज हूं, या अच्छे रिजल्ट आए तो उसके भी मैं ही कॉज हूं। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट द कॉज ऑफ द इमीडिएट, जो इमीडिएट है, मतलब कि वी आर नॉट द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स। अब तो फिर इससे आदमी को लगेगा कि भाई फिर मैं काम करूं ही क्यों, भाई जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं तो उसका कॉज भी नहीं हूँ, मैं एंटाइटल्ड भी नहीं हूँ, तो बस उनको मैं मतलब एक इनडिफरेंट पर्सन की तरह मैं वो करता रहूं। तभी भगवान ने वो लास्ट पार्ट कहा है, नाते संगो अकर्मणि, बट यू कैन नॉट बी अटैच टू नॉट वर्किंग। आप नॉन वर्क से प्रिस्क्राइब ड्यूटी पे आपका अधिकार, यू राइट भी है, और आपको करते भी रहना है, इवन नोइंग कि भाई मैं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना मैं उसका कॉज हूँ ना ही मैं उसके एंटाइटल्ड हूँ। एंड एक्चुअली तो मैंने और पापा ने इसके बारे में थोड़ा और भी सोचा था इवेंचुअली इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट, क्योंकि एक और जगह परीक्षित महाराज से श्रीमद् भागवतम के एंड में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भाई यू आर द कॉज ऑफ दिस, जो तुम्हारे साथ ये तुम्हें श्राप मिला जिसकी वजह से तुम्हारी डेथ हुई, मतलब डेथ होने जा रही है। तो फिर बड़ा लगा कि ये ऐसा फिर क्यों कहा। एक्चुअली में जो हमको समझ में आया, मुझे और पापा को, वी की इन द लार्जर कंटेक्स्ट, जैसे कि हम, जैसे हमें कर्मा के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये हमारे पुरानी बर्थ के कर्मा हैं, उससे भी पहले की बर्थ के कर्मा हैं, वो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वी आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट वो कब होगा, किस कंडीशन में होगा, दैट इज कंप्लीटली अप टू लॉर्ड कृष्णा।
जैसे अभी, जैसे कि हमने बहुत सारे कर्म, जितना जो मुझे हम पापा को हमको समझ में आया कि भाई हमने बहुत सारे कर्मा एक्यूमुलेट किए हैं। अब हम इस जीवन में कुछ कर्म कर रहे हैं और हमको कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, मैं इस जीवन में तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई आपके बहुत पहले के भी बहुत कर्माज हैं जिसकी वजह से यू आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट वो कब होगा, कैसे होगा, दैट इज अप टू लॉर्ड कृष्णा। ये हम लोगों ने समझा है। ठीक ठीक ठीक। एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आगे ही कि लिटरल जो ट्रांसलेशन है ना, जी। वो एक कर्मण्येवाधिकारस्तु, मतलब कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको करने पर ही केवल तुम्हारा अधिकार है। जैसे आपके बच्चा हुआ है तो उसको पढ़ाने पे ही केवल आपका अधिकार है, केवल पढ़ाने पे अधिकार है ना। पत्नी को आप कर्म है मतलब उसको ठीक से रखेंगे, इस पे ही केवल उसके रिलेटेड जो ड्यूटी करनी है उस पे ही केवल आपका अधिकार है। माँ फलेशु कदाचन, लेकिन उसकी उस ड्यूटी के का जो रिजल्ट आएगा ना उस पर आपका अधिकार नहीं है। मतलब वो ड्यूटी के करने के बाद में कि लड़का पढ़ करके क्या बनेगा उस पे आपका अधिकार नहीं है, मतलब दैट यू डोंट कंट्रोल। मतलब फल पे आपका अधिकार भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। आप समझे कि नहीं? ये भी कह रहे हैं, क्या नाम है कि उस फल पे आपका अधिकार नहीं, भगवान का अधिकार है, इसीलिए बिकॉज ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। उसके बाद में माँ कर फल हेतुर भुरमा, मतलब कि आपके जो कर्म फल हुआ है ना उसके आप रीजन भी नहीं है। ऑल्दो पहली लाइन में जो यू आर नॉट क्योंकि द कॉज। आपने किया है किया तो आपने है, आपने जैसे अपने लड़के को एक झापड़ मारा, ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही आपके तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, तो आप सोचेंगे कि यार मैंने झापड़ मारा, इसको दर्द हुआ है, लेकिन वो जो है ना मतलब जो उस जो आपने कर्म फल हुआ है उससे जो उसको लिमिटेशन होगा या वो क्या होगा उस पर उसके भी आप कारण नहीं है। मतलब कि यू आर नॉट द कॉज ऑफ जो रिजल्ट मिल रहा है ना उसके आप कॉज नहीं है, ऑल्दो करवाया भगवान ने आपसे, बिल्कुल जी। आपसे भगवान ने करवाया आपसे। जैसे आपके पड़ोसी ने आपको तकलीफ दे दी, आप सोच रहे हैं कि वो कॉज है, पड़ोसी कॉज है, बट वो पड़ोसी नहीं है कॉज, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओके। कर्म फल हेतुर भूर्मा, तभी आप जो है ना यू कैन नॉट डेवलप एंगर टुवर्ड्स हिम। बड़ा की चीज है ये, मतलब कि क्योंकि जैसे इसका एक आपके और है साथ कि सबको निमित्त बनाते रहते हैं भगवान की। जैसे हमको, हम लोग यहाँ एक सेंटेंस सर्व करने आए हुए हैं। वी आर नॉट हेयर टू एंजॉय, वी आर हेयर टू सर्व आउट ए सेंटेंस। अब वो सेंटेंस आपको किसके थ्रू वो पनिशमेंट होगा, किसी ना किसी के थ्रू होगा ही। वो भगवान किसी न किसी को बनाते रहते हैं, या तो नेबर, या बच्चा, या आपका पुत्र, या आपकी पुत्री, या आपके मतलब वाइफ या फैमिली। वो बनाते रहते हैं भगवान कुछ कंडीशन में। लेकिन आपको यहाँ पे, लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग उनसे उलझना स्टार्ट कर दें। लेकिन जब अगर आप समझे ना कि वो लोग कॉज नहीं है, जैसे जो पापा कह रहे हैं, जो भी जिसको भी निमित्त बनाया गया है जिससे कि आपको पेन मिजरी मिल रही है, दे आर नॉट द कॉज ऑफ इट, रादर यू आर ऑल्सो नॉट द कॉज ऑफ इट। आपको वो ये सेंटेंस काटना है। मतलब आपको ये अब उसके बाद में क्रम है कि यू आर नॉट द, मतलब यू आर नॉट द कॉज ऑफ द रिजल्ट। समझ गया ना, मतलब जैसे किसी पड़ोसी आपका, जैसे एक कथा आएगी चित्रकेतु की, वो जो है उनका लड़का डेड हो गया, तो अब कई लोग अपने sons will blame their parents for what is happening to them. The parents will blame their sons for what is happening to them, कि भाई बुढ़ापे में ये मेरी केयर नहीं कर रहा है। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा ना, देन क्या नाम है मतलब यू विल बिकम मच मोर बेटर ऑफ। ऐसे क्या है, यू विल ऐसे कीप ऑन बर्निंग। कई स्टोरीज हैं जिसमें कि भाई पेरेंट्स ने बिल्कुल अच्छे से बच्चे को पाला, बच्चे ने भी अच्छे से पेरेंट्स की तरह। जैसे भगवान राम और दशरथ महाराज का ही लीजिए, दे कुड नॉट बी ए परफेक्ट फादर और ए परफेक्ट सन, येट वो धृतराष्ट्र को, अरे वो दशरथ महाराज हैड टू डाई।
मतलब उनकी सेवा नहीं कर पाए लॉर्ड राम। तो वो किस तरह से वो मतलब वो कैसे होगा, वो मटेरियल कंडीशन भगवान के हाथ में है। वो वी आर नॉट द कॉज ऑफ इट, वी आर नॉट एंटाइटल्ड। हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट्स कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, मिजरी आ रही है रिजल्ट्स में। वो ना हम उसके कॉज हैं, ना ही हम उसके एंटाइटल्ड हैं। वो मिजरी आएगी, कट के निकल जाएगी। या अच्छा होता है जैसे कि कोई लोग सोचते हैं मैंने किया ये बिजनेस में, मैंने किया ये जॉब, मैंने किया ये पैसे कमाए, मैंने वही, यू आर नॉट द कॉज ऑफ इट। अब आप जो है वहीं पे। और फिर वो जो माँ संगोष्ठ अकर्मणी, मतलब वो भी मतलब बड़ा। अब देखो ना, इसी में जो वरुण ने एग्जाम्पल दिया लॉर्ड श्री राम का और दशरथ महाराज का, तो मतलब कि लॉर्ड दशरथ ने उनको पाला कितना, मतलब ढंग से पाला, सब तैयार किया क्रम कि भाई बुढ़ापे में ये मेरे को सुख देगा। और बट वो उनको मतलब नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि वो अब कर्म नहीं करेंगे दशरथ महाराज, या लॉर्ड राम जो है कर्म नहीं करेंगे। मतलब कर्म कर्मणी भी नहीं होना है। यू सी दैट पार्ट इज, आपको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए आप बाध्य हैं। बाध्य है। सन की ड्यूटी करने के लिए बाध्य हैं, चाहे बाप आपका क्या नाम है कितना भी टॉर्चर करे। यू आर नॉट to abandon your, और same way it goes for इसको जरा सा तुम एक काम करना कि आज जितना डिस्कशन हुआ है, इट वाज गुड दैट यू ब्रॉट इट अप। इस श्लोक को तुम जा करके पढ़ना, एक एक श्लोक का एक एक वर्ड उसके मीनिंग के साथ में, इसी भगवत गीता में। जी जी और जी फिर कर्म है वी कैन डिस्कस, बिकॉज इट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल टू ब्रिंग अप सच डाउट्स। इसके अंदर में मतलब क्योंकि वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, जी। तो ये बड़ा पावरफुल श्लोक है। इसको समझ में आ जाने से आपका मन काफी शांत हो सकता है। एक्चुअली बहुत शांत इसलिए हो सकता है ना, एक तो गिल्ट से आपको बहुत ज्यादा शांति मिल जाएगी। अभी देखिए ना, कई लोग अपने को गिल्ट लेते रहते हैं, परेशान कि ये मेरी वजह से हो गया, ये कुछ खराब कुछ भी हुआ उनकी लाइफ में मेरी वजह से हो गया। या तो ये होता है तो गिल्ट होता है, या दूसरे की वजह से हो गया तो उस पर गुस्सा आता है। कम से कम ये सब इतना जो आपको मिजरी है वो आपकी काफी रिड्यूस हो जाएगी। आपको ये लगना बंद हो जाएगा कि भाई ये तो मेरी वजह से या दूसरे की वजह से हुआ है। फिर तो आप एकदम एट द सेम टाइम अब वहां पे अकर्मणी भी कर दिया है आपको। अब लिमिटेशन भी नहीं होगा, येट यू विल कीप ऑन वर्किंग। और फिर बाकी भगवत गीता के उसमें कहा कि भाई यू आर वर्किंग एंड डेडिकेटिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड श्री कृष्णा। और फिर यार उसके बाद में ये जब आप लॉर्ड श्री कृष्णा को डेडिकेट करते हैं ना, तब फिर वो आपको रिएक्शन से आपकी निजात हो जाती है। फिर तो ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट है नहीं। वो भगवान ने ये श्लोक गीता में किस अध्याय में मिलेगा? ये है क्या नाम है 2 पॉइंट समथिंग में ही है, नहीं? अच्छा, आई थिंक 2 पॉइंट, मैं बता दूं क्या, एक मिनट रुको फिर। एक सेकंड में ढूंढ के बता रहा हूँ। हाँ हाँ 2.49। अरे गूगल पे ना तुम ये लिखो क्या नाम कर्मण्येवाधिकारस्तु भगवत गीता, बस वो बता देगा कौन सा है। 3.47, सॉरी अभी आया नहीं। 2.47 ये हो चुका है हम लोग के। हाँ, जी जी 2.47। ये मैं इस वाले चैट में भेज देता हूँ, श्रीमद् भागवत में। ठीक हमारा ग्रुप है ना, ये मैंने भेज दिया। इसको अब मैंने बड़ा यार इसके साथ में मतलब मैंने इसको थोड़ा मनन किया है। और क्योंकि कई बार जैसे वरुण के साथ हम लोगों ने बड़ा डिस्कस किया कि क्या नाम है यार, ये जो है हमारे साथ और भी कई श्लोक हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने उनको बताया ना, वो कौन सा है सनी? ताते अनुकंपम। ताते अनुकंपम। भैया जो आपको सफरिंग हो रही है ना, वो तो आपके पुराने कर्मों का फल है। उसको तो सफर करो, बहुत ही चुपचाप, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। फिर भी भगवान को मत छोड़ो किसी हालत में, मत छोड़ो। अगर आप ये करते हो तो देन तो आप तुरंत अधिकारी हो जाते हो, मुक्ति के अधिकारी हो जाते हो आप। अगर आप ये सफरिंग को एक्सेप्ट करके कि ये मेरे पुराने कर्मों का फल है भगवान, एंड भगवान के सामने नमस्ते करते रहते हैं, तो आप मुक्ति के राइटफुल ओनर हो जाते हैं। और अच्छा, ये कौन कह रहा है? कोई ऐसा वैसा नहीं, लॉर्ड ब्रह्मा कह रहे हैं खुद लॉर्ड कृष्णा से। वो भी उस समय जब लॉर्ड ब्रह्मा ने बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया है लॉर्ड कृष्णा के अगेंस्ट, तब वो इस तरह की स्तुति कर रहे हैं भगवान से, अपोलोजाइज करते हुए कर रहे हैं। बड़ा ये
बहुत ही पावरफुल श्लोक है वो तात ते अनुकंपम। इसीलिए मतलब ये ना इस मतलब कि बड़ा इस श्लोक का भी रेफरेंस भेज देना अगर इनको करम है। हाँ नाउ तात दैट वी हैव अनुकंपम। टॉक्ड अबाउट इट, शी विल गो टू भागवतम एंड करम है, चाहे एडवांस में ही है तो क्या हो गया। और इस वाले श्लोक की बेसिस पे बड़े बड़े लोगों ने पेन को बहुत से रिलीफ पाई है। कैंसर से बहुत डेथ होने वाली है, कैंसर यू नो हाउ पेनफुल इट इज, वी जस्ट कांट इमेजिन। एंड पीपल हैव जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट कि भैया नहीं आप सोचिए ना कि मतलब इवन आप सोचिए शीला प्रभुपाद, वही शीला प्रभुपाद इतने पायस पर्सन, कितना उनके साथ भाई उनके साथ फिजिकल फाइट्स भी हो गई थी न्यूयॉर्क में जब वो यहाँ पे आके रह रहे थे। कुछ वो जानते ही नहीं थे जिसके साथ रह रहे थे इन हिज ड्रग हेज, उस लड़के के साथ फिजिकल वो भी हो गया था ऑल्टरकेशन। बट फिर भी ही केप्ट ऑन डूइंग दिस, केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग एंड ही केप्ट ऑन, ही नेवर लेफ्ट फेथ इन लॉर्ड कृष्णा। तो बिल्कुल। आदमी को लगता है कि मतलब तात्या अनुकंपम कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे पास्ट कर्मों का वो है, बट आई विल गो ऑन सर्विंग लॉर्ड कृष्णा। देन लॉर्ड कृष्णा मतलब ही इज बड़ा बहुत ही पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म कह लीजिए या बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है ये। मुझे तो हमारे को मेरे को पापा को, क्योंकि हम लोगों ने ये तात्य अनुकंपम जो है दैट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। दैट इज ये वाला जो हमने मतलब एक्चुअली मैंने तो उसको प्रिंट करके फ्रेम कर लिया अपने घर में। तात्य अनुकंपम सुसमीक्षमाणो भुंजना एवात्मा कृतम विपाकम हृदवाग वापुर्भिर विधाधनस नमस्ते जीवेता यो मुक्ति पदा दया भाग। तो आप उसको भी पढ़िएगा, मोस्टली इट विल बी, बिल्कुल पढ़ेंगे। इट विल रियली हेल्प, जी स्पेशली जब बड़ी प्रॉब्लम आती है जी। एंड इट रियली हेल्प्स। ठीक है वरुण, अब हम लोग हैं, दिस इज या टाइम हो गया। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके भाई, थैंक यू।